السلام علیکم ناظرین، 20 جولائی 1969 دنیا کی تاریخ کا اہم ترین دن، کیونکہ یہی وہ دن تھا کہ جس دن انسان پہلی بار چاند پر قدم رکھنے جا رہا تھا۔ ناظرین، 20 جولائی کو ناسا کی جانب سے لانچ کیے جانے والے مشن اپولو 11 کا ایک لیونر موڈیول چاند پر لینڈ کرتا ہے۔ اس لیونر موڈیول میں 2 ایسٹروناٹس موجود ہیں، جن میں سے ایک نیل آرمسٹرانگ اور دوسرے بز ایلڈرن ہیں۔ لیونر موڈیول کے لینڈ ہونے کے بعد نیل آرمسٹرانگ اس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیونر موڈیول کا دروازہ کھولنا کوئی آسان ٹاسک نہیں تھا، کیونکہ بہت زیادہ پریشر تھا، اور نیل آرمسٹرانگ ایک جدوجہد کے بعد یہ دروازہ کھولنے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیونر موڈیول سے باہر نکلنے کے لیے کوئی زیادہ کھلا راستہ نہیں تھا۔ اس دوران لیونر موڈیول کا ایک بہت ہی اہم حصہ ٹوٹ کر گر جاتا ہے، کیونکہ چاند کے اوپر ہوا موجود نہیں تھی، کوئی ایسا میڈیم بھی نہیں تھا جس کے ذریعے سے اس کے ٹوٹنے یا گرنے کی آواز نیل آرمسٹرانگ یا پھر بز ایلڈرن کو سنائی دیتی۔ اس وجہ سے یہ دونوں اس سے بے خبر رہتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم ٹکڑا، یہ بہت ہی اہم پیس گر جاتا ہے۔ ناظرین، لیونر موڈیول کا ٹوٹ کر گرنے والا پیس کوئی عام پیس نہیں تھا، بلکہ اس پیس کے بغیر اس لیونر موڈیول کا واپس زمین پر جانا پوسیبل نہیں تھا، کیونکہ یہ ٹکڑا اسینڈ انجن آرمنگ سوئچ تھا کہ جس کے بغیر انجن کا سٹارٹ ہونا پوسیبل نہیں تھا۔ اس چیز سے بے خبر نیل آرمسٹرانگ لیونر موڈیول سے باہر آتے ہیں اور دنیا کے پہلے چاند پر قدم رکھنے والے انسان بن جاتے ہیں اور دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Shadow. 4 forward, drift into the right a little. 30 seconds. Forward, drift. Contact light. Okay, engine stop. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're going to be busy for a minute. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. It's one small step for man. One giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful, Neil. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Beautiful view. Isn't that something? Magnificent sight out here. Magnificent desolation. Tranquility Base, Houston. Guidance recommendation is pings, and you're cleared for takeoff. Roger, understand. We're number 1 on the runway. 7, 6, 5, engine arm ascent. Beautiful. Very smooth. Very quiet ride. Apollo 11, this is Hornet, over. Apollo 1, this is Apollo 11, reading a loud and clear. Our position 1330. ناسا کی جانب سے انسان کو چاند پر بھیجنے کی کوششوں کا آغاز اس وقت کیا گیا جب اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی نے اپنی ایک مشہور سپیچ جو کہ انہوں نے 25 میں 1961 کو کی، اس کے اندر انہوں نے جب یہ دعویٰ کیا کہ ہم اس ڈیکیڈ کے ختم ہونے سے پہلے انسان کو چاند پر بھیجیں گے، اور نہ صرف یہ کہ انسان کو چاند پر بھیجیں گے بلکہ صحیح سلامت چاند سے واپس زمین پر لے کر بھی آئیں گے۔ ناظرین، امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے کی جانے والی یہ اناؤنسمنٹ کسی انہونی سے کم نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ یہ اناؤنسمنٹ ایسے دور میں کی جا رہی تھی کہ جس دور میں نہ تو انٹرنیٹ موجود تھا، نہ ہی کمپیوٹر اتنے ایڈوانس تھے، نہ جی پی ایس سسٹم تھا، نہ ہی اسمارٹ فونز تھے۔ اس دور کے اندر امریکن پریزیڈنٹ نے جب یہ دعویٰ کیا کہ ہم اس ڈیکیڈ کے ختم ہونے سے پہلے انسان کو چاند پر دیکھیں گے، اس دعوے کے فوراً بعد سے پوری سپیس ایجنسی کو امریکہ کی جانب سے اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کام پر لگا دیا
गया और फिर अगले 5 सालों में स्पेस प्रोग्राम को 7 से 9 बिलियन डॉलर्स की एडिशनल फंडिंग दी गई और फिर कुछ ही महीनों के अंदर मुख्तलिफ टेस्ट का आगाज कर दिया गया। नाज़रीन, नासा की जानिब से 3 मेन टेस्ट परफॉर्म किए गए, जिनमें से एक टेस्ट उन रॉकेट्स का परफॉर्म किया गया कि जिनके जरिए से जमीन से बाहर जाना था, और दूसरा टेस्ट उन कमांड मॉड्यूल्स की हीट शील्ड्स पर परफॉर्म किया गया कि आखिरकार ये किस हद तक हीट से बचा पाएंगी, और तीसरा सर्विस मॉड्यूल के प्रोपल्शन सिस्टम को टेस्ट किया गया। नाज़रीन, 1963 से 1967 तक कई टेस्ट परफॉर्म किए गए जो कि सारे के सारे अनमैन्ड थे, यानी उनमें इंसान मौजूद नहीं था। नाज़रीन, 1967 में मैन टेस्ट की प्लानिंग की गई कि जिसमें वाकई इंसान को स्पेस क्राफ्ट में बिठाकर ऊपर तक भेजा जाएगा और इसको अपोलो 1 का नाम दिया गया। नाज़रीन, इन्हीं टेस्ट के दौरान जो कि जमीन पर परफॉर्म किए जा रहे थे, 27 जनवरी 1967 को 3 एस्ट्रोनॉट्स जो कि इन टेस्ट का हिस्सा थे, एक कैबिन में आग लगती है और वो 3 एस्ट्रोनॉट जब बहक हो जाते हैं। इसके बावजूद नासा की जानिब से मिशंस का ये सिलसिला रोका नहीं जाता, बल्कि अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 मिशंस परफॉर्म किए जाते हैं। और नाज़रीन, एक दफा फिर अक्टूबर 1968 को मैन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और एक्चुअल में इंसान को स्पेस क्राफ्ट में बिठाकर स्पेस में भेजा जाता है और ये टेस्ट कामयाब हो जाता है और इस मिशन को अपोलो 7 मिशन का नाम दिया जाता है। और इसके बाद दिसंबर 1968 को एक और टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और एक और मिशन लॉन्च किया जाता है जिसको मिशन अपोलो 8 का नाम दिया जाता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसशिप में बिठाकर चांद के पास भेजा जाता है। और फिर नाज़रीन, मार्च 1969 को अपोलो 9 मिशन लॉन्च किया जाता है कि जिसमें उस ल्यूनर मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है जिसने एक्चुअल में जाकर चांद पर लैंड करना था। और फिर मई 1969 को अपोलो 10 मिशन लॉन्च किया जाता है कि जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को वो तमाम तर चीजें परफॉर्म करवाई जाती हैं जो कि अपोलो 11 मिशन में करवाई जानी थी, सिवाय इसके कि अपोलो 11 में जो कि चांद पर लैंडिंग होनी थी, लेकिन अपोलो 10 के अंदर सिर्फ चांद पर लैंडिंग नहीं करवाई गई, बाकी तमाम तर चीजें इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को परफॉर्म करवाई गई। और फिर फाइनली 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया जाता है जिसके अंदर 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे, जिनमें से एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे बज एल्ड्रिन और थर्ड माइकल कॉलिन थे। अपोलो 11 मिशन के अंदर इस्तेमाल होने वाले स्पेस क्राफ्ट के 3 पार्ट्स थे, जिनमें से एक कमांड मॉड्यूल था, एक सर्विस मॉड्यूल था और एक ल्यूनर मॉड्यूल था। और कमांड और सर्विस मॉड्यूल के कॉम्बिनेशन को CSM यानी कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल कहा जाता था। और इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए रॉकेट सैटर्न V5 का इस्तेमाल किया गया। इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने से कबल 1 मिलियन गैलन कैरोसिन और लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन भरी गई, जिसकी वजह से इस स्पेस क्राफ्ट का वजन 30 लाख किलोग्राम हो गया। इस स्पेस क्राफ्ट ने सतह जमीन से जमीन के ऑर्बिट तक पहुंचने में 10 मिनट से भी कम का वक्त लिया। जमीन के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद इस स्पेस क्राफ्ट ने जमीन के गिर्द तकरीबन 1.5 चक्कर काटा। उसके बाद मिशन कंट्रोल की जानिब से इन्हें परमिशन मिल गई कि ल्यूनर ट्रांस इंजेक्शन करवा दी जाए और अभी इस स्पेस क्राफ्ट को जमीन के ऑर्बिट से निकलकर चांद के ऑर्बिट में जाना था। और इस स्पेस क्राफ्ट को जमीन के ऑर्बिट से निकालकर चांद के ऑर्बिट तक ले जाने के लिए भी रॉकेट सैटर्न V5 का इस्तेमाल किया गया और ये सारा का सारा प्रोसीजर 5 घंटों में मुकम्मल हो गया। इसके बाद ये स्पेस क्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए कई दिनों का वक्त लेता है और तकरीबन 4 लाख किलोमीटर का फासला तय करने के बाद फाइनली 19 जुलाई को अपोलो 11 का ये स्पेस क्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। अब प्लान के अकॉर्डिंग CSM को ल्यूनर मॉड्यूल से अलग हो जाना है और CSM के अंदर माइकल कॉलिन मौजूद हैं और CSM का निक नेम कोलंबिया रखा गया है। और नाज़रीन, इस ल्यूनर मॉड्यूल का निक नेम ईगल रखा गया है और इस ईगल के अंदर 2 एस्ट्रोनॉट मौजूद हैं, जिनमें से एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे बज एल्ड्रिन हैं। नाज़रीन, ठीक 8 बजे ये ल्यूनर मॉड्यूल चांद की सतह पर लैंडिंग करने जा रहा है कि अचानक से एक अलार्म बजने लगता है, जिस अलार्म और जिस वार्निंग के मुतालिक ये दोनों एस्ट्रोनॉट बिल्कुल नावाकिफ थे। मिशन कंट्रोल से राब्ता किया जाता है और पूछा जाता है कि इस अलार्म का क्या मतलब है। मिशन कंट्रोल की जानिब से कहा जाता है कि इस अलार्म को इग्नोर कीजिए और अपना मिशन जारी रखिए, जबकि बाद में पता चलता है कि वार्निंग 1202 गाइडेंस कंप्यूटर के प्रोसेसिंग सिस्टम के ओवरलोड होने की वजह से है। और अच्छी किस्मत यह थी कि इस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ओवरलोडिंग होने के बावजूद यह सिस्टम इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रन कर रहा था। नाज़रीन, अब ल्यूनर मॉड्यूल ऑटोमेटिकली खुद ही लैंडिंग परफॉर्म
परफॉर्म करने जा रहा था, लेकिन अचानक से नील आर्मस्ट्रॉन्ग देखते हैं कि ये एक ऐसी जगह पर लैंड होने जा रहा है जहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जल्दी से इसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ल्यूनर मॉड्यूल की लैंडिंग के लिए ल्यूनर मॉड्यूल को उस पॉइंट से 4 मील दूर ले जाते हैं। 8:16 पर ल्यूनर मॉड्यूल चांद की सतह पर लैंड करने जा रहा था कि अचानक से बज एल्ड्रिन की नजर पड़ती है फ्यूल इंडिकेटर के ऊपर और वो देखते हैं कि सिर्फ 5% फ्यूल बाकी बचा है। मिशन कंट्रोल से राब्ता किया जाता है और उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि फ्यूल सिर्फ 5% बचा है। मिशन कंट्रोल की जानिब से एक काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया जाता है कि इस काउंटडाउन के खत्म होने से कबल अगर ल्यूनर मॉड्यूल लैंडिंग नहीं करता तो इस मिशन को यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस काउंटडाउन के खत्म होने में सिर्फ 30 सेकंड बाकी थे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जमीन पर एक रेडियो मैसेज भेजते हैं कि ईगल फाइनली लैंड कर चुका है। नाज़रीन, ईगल को इस वक्त 650 मिलियन लोग टीवी पर लाइव देख रहे हैं। नाज़रीन, फाइनली नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहला कदम रखते हैं और उनके पीछे पीछे बज एल्ड्रिन भी चांद पर कदम रखते हैं। ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स तकरीबन 2.5 घंटे तक चांद पर मौजूद रहते हैं, मिट्टी के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, डिफरेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को इंस्टॉल करते हैं। ये दोनों एस्ट्रोनॉट चांद से 23 किलो मिट्टी और पत्थर के सैंपल इकट्ठे करते हैं और वहां पर अमेरिका का झंडा नस्ब करते हैं और एक प्लेट नस्ब करते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है हियर मैन फ्रॉम प्लैनेट अर्थ first footstep upon the moon, July 1969 AD. We came in peace for all mankind. नाज़रीन, ये ल्यूनर मॉड्यूल करीब 21 घंटे चांद पर गुजारता है। अब इस ल्यूनर मॉड्यूल को दोबारा से टेक ऑफ करना है और CSM से जाकर दोबारा से अटैच होना है ताकि ये दोबारा वापस जमीन पर जा सके। लेकिन इस ल्यूनर मॉड्यूल को टेक ऑफ करने के लिए प्रोपल्शन चाहिए और प्रोपल्शन के लिए इंजन का होना जरूरी है। शुरू में जैसा कि मैंने आपको बताया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के उतरने के दौरान एक बहुत ही अहम पुर्जा ल्यूनर मॉड्यूल से टूटकर गिर जाता है कि जिसकी इन दोनों को खबर नहीं होती। लेकिन जब इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की जाती है तो इन्हें मालूम होता है कि बहुत ही अहम स्विच गिर चुका है और ये मिशन कंट्रोल से राब्ता करते हैं। मिशन कंट्रोल की जानिब से इसका सॉल्यूशन बताया जा रहा था। इसी दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग के माइंड में ये बात आती है कि है तो ये एक सर्किट और सर्किट को जोड़ने के लिए स्विच चाहिए होता है। इसी दौरान उनकी नजर अपनी बॉल पेन पर पड़ती है और वो उसी बॉल पेन को अटैच करते हैं, उसी बॉल पेन को कनेक्ट करते हैं जिससे इंजन स्टार्ट हो जाता है और ये दोबारा से टेक ऑफ करके वापस से CSM के साथ अटैच हो जाते हैं। नाज़रीन, ल्यूनर मॉड्यूल के CSM के साथ दोबारा से अटैच हो जाने के बाद प्लान के अकॉर्डिंग सर्विस मॉड्यूल को स्पेसक्राफ्ट से डी अटैच होकर एटमॉस्फेयर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाना था और इस डिस्ट्रॉय होने के पेश नजर ये सोचा गया कि अगर ये इस स्पेसक्राफ्ट की वहां पर मौजूदगी में डिस्ट्रॉय होता है तो इसके पीसेस आकर स्पेसक्राफ्ट से टकराएंगे और जिससे ये स्पेसक्राफ्ट वहीं पर तबाह हो सकता है। इस चीज के पेश नजर इस सर्विस मॉड्यूल के ऊपर थ्रस्टिंग का सिस्टम इंस्टॉल किया गया, लेकिन बदकिस्मती के साथ वहां पर पता चलता है कि थ्रस्टिंग काम ही नहीं कर रही और फिर ये तीनों एस्ट्रोनॉट अपनी आंखों के सामने सर्विस मॉड्यूल को तबाह होता हुआ देखते हैं, उसके पीसेस को बिखरता हुआ देखते हैं। इन एस्ट्रोनॉट्स की अच्छी किस्मत थी कि कोई भी पीस आकर इस स्पेसक्राफ्ट से नहीं टकराता। अजीम, इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स के जिंदा बचकर जमीन पर आने के चांसेस इतने कम थे कि उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक ऑल्टरनेट स्पीच लिख रखी थी कि अगर ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं तो मैंने इनकी मौत को किस तरह से डिफाइन करना है। नाज़रीन, बिलाखिर ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा और सही सलामत जमीन की फिजाओं में वापस आ जाते हैं और इनके पैराशूट्स ओपन होते हैं और ये आकर समुद्र में गिर जाते हैं और फिर कश्तियों के जरिए से इन्हें निकाल लिया जाता है और इन्हें आइंदा के 2 हफ्तों के लिए क्वारंटाइन कर लिया जाता है ताकि अगर कोई ऐसी बीमारी जो जमीन पर वापस आने के बाद इन्हें लग सकती है तो उस बीमारी से इन्हें बचाया जा सके। मिलते हैं किसी नई और दिलचस्प वीडियो के अंदर। आज तक के लिए अपने मेजबान जुल्करनैन शिराजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।